ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते मो पछे पछे उच्चारण करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। हरे कृष्ण। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିପାରିବ କି ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? प्रभु ठीक है। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସାପ୍ତାହିକ ଗୀତାମୃତ ସେସନ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମର କି ଲାଭ ହବ? ଆମେ କାହିଁକି ଗୀତା ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଳଶ୍ରୁତି। ଏପରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ମହିମା କଣ ଅଛି? ଅଛି ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଚେତନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଚେତନା ଭୌତିକତା ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ, ଅର୍ଥାତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭଦ୍ରାମି ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଭଦ୍ର। ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ ନିତ୍ୟଂ ଭାଗବତ ସେବାୟା। ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଯାହାର ଚେତନା କଳୁଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରିକି ନିତ୍ୟମ ଭାଗବତ ସେବୟା, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଏହାପରେ ଭକ୍ତି ଦେवी ନିଜେ କଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ନଷ୍ଟ ତାର ଅଭଦ୍ରାମୀ ତାର କଳୁଷିତ ଚେତନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁନଃ ତା ଭିତରେ ଭଗବତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ। भगवती उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक माने भगवान कृष्ण, जहाँ को सुंदर सुंदर श्लोक माध्यम गुणगान करा जाए। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो केमतिया भक्ति प्राप्त हब? नैष्टिकी भक्ति, निष्ठा, अर्थात जो भक्ति कले जनकर निष्ठा वृद्धि हेतिव, तो से क्षेत्र तार पतन हवनी, भौतिक जगत से पुणी तार अधपतन हवनी। तो नैष्टिकी निष्ठा भक्ति प्राप्त करिपरिबा यदि आमे सबदिन भागवतम अध्ययन श्रवण करिपरिबा। तेणु सेति
भागवतम रे विभिन्न तत्व अछि। तत्व माने भगवान को जानिया ପାଇଁ विभिन्न तत्व अछि। ते ସବୁ तत्व ଭିତରେ बहुत सुंदर ଗୋଟେ तत्व ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ତତ୍व। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ତ ଗୁରୁ ତତ୍व, କୃଷ୍ଣ ତତ୍व, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ତତ୍व ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। କୃଷ୍ଣ ତତ୍ଵ ହେଲା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ଆଉ କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ଵ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ତତ୍ଵଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। କାହା ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି? ମନୋଜ ତୁମ ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु। आज्ञा। ତ ଆମେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କହିବେନି। ବିଷୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନା। ତ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଏ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଏ କରିନଥିଲେ। ତା ସହିତ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ମୋ ପଛେ ପଛେ ମତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् कुतस्ता कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्गम् अनर्जजुष्टसमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଭାବାର୍ଥରେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। वदन्ति तत्तत्त्वविदः वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् तत्त्वं जज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवानिति शब्दते। ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ନେକ୍ସଟ, ସେଇ ଭାବାର୍ଥର ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରୁ। ଈଶ୍ୱରଃ ପରମଃ କୃଷ୍ଣଃ ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम् सर्व कारण कारणम् एतचांश कलह पुंसा एतच्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रादि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति जुगे जुगे। 7 नंबर श्लोक। कार्पण्यदोषापहता स्वभावः कार्पण्यदोषपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण।
तो ये दुईटा श्लोकर भावार्थ अनुसार आम आज टॉपिक ये करवा। ଏବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିବି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟପିକ ଆଡକୁ ଯିବା। ତ ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜେଜେମା ଥିଲେ କେବଳ, ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ ପରିବାରରେ। ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ସ୍କୁଲ କୁ ପିଲାକୁ ପଠାନ୍ତି, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ କଣ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭରସା ଆସୁଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ତୁମେ କାହାକୁ ଡାକିବ ନା ତୁମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି। ନା ମୋ ଭାଇ କିଏ? ଛୋଟ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା ମୋ ଭାଇ ନାଁ ହେଲା ଗୋପାଳ। ତ ଗୋପାଳକୁ ହିଁ ଡାକିବ। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲାବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେବାକୁ ପଡେ। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ତୁମର କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତ ତମେ ଗୋପାଳକୁ ଡାକି ପାରିବ। ତ ସବୁଦିନ ସେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ବାଳ ସ୍ୱଭାବ ତାର, ସେ ଗଲାବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋପାଳକୁ ଡାକେ ତାର ନିଜ ଭାଇ ହିସାବରେ। ତ ଗୋପାଳ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲାବେଳେ ପାରି ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି। ତ ସେ ଭୋଜିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆଇଟମ ଆଣିକି ଆସିଥିବ, ତାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିକି ଭୋଜି କରିବା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଥିଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ, ଆସିଲେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ, ତ ବେଶୀ କିଛି ଏତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକା ବନେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବି ଆଇଟମ ବନେଇବାର ଥିଲା, ସବୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗଲାବେଳେ ତୁମେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବ, ସିଏ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଇଦେବେ, ତୁମେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଲା ବେଳେ ସେ ଡାକିଲେ ଗୋପାଳ ବୋଲି। ତ ଗୋପାଳ ନିଜେ ଆସିଲେ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି ସେ କଣ କଲେ, କହିଲେ କି ଭାଇ ଆଉ ମତେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ, ତାକି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇପାରିବି, ଆମର ଭୋଜି ଅଛି। ତ ତ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟୋରୀରେ କିଛି କ୍ଷୀରି ଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଆସିକି ସେ ପିଲାଟି କଣ କରିଛି, ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଗୋପାଳଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ଥିଲେ, ଯିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ, ତ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟୋରୀରେ, ଛୋଟ ତାଟିଆ ଟାଇପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷୀରି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସାର୍ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଳି କଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ତୁମକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି ହଉଛି ନା, ତ ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟୋରୀରେ ଆଣିକି ଆସିଲ? ତ ଏମିତି କହିକି ସାର୍ କଣ କଲେ, ସେ ଯୋଉ କଟୋରୀରେ କିଛି କ୍ଷୀରି ଥିଲା, ତାକୁ କଣ କଲେ, ଫୋପାଡି ଦେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି ଅଛି ବାହାରେ ପଡି ଯାଇଛି, ମାନେ ସେଇ ମାଟି ଉପରେ ପଡିଛି। ତା ସହିତ ସେ ତାଟିଆରେ ଥିଲା, ତାଟିଆରେ ବି କ୍ଷୀରି ଫୁଲ ଅଛି। ସାର୍ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେ ତାଟିଆ ଟାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କେତେ କ୍ଷୀରି ଅଛି କହିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ସେ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ଏମିତି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀରି ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ଥିଲା, ସେ ପାତ୍ରଟେ ଫୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିଲେ, ସେ ପାତ୍ର ବି ଫୁଲ ଅଛି। ତ ସାର୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ ଏ କ୍ଷୀରି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ତ ସିଏ କହିଲେ, ମୋ ଭାଇ ଗୋପାଳ ସେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଗୋପାଳ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏ କ୍ଷୀରି କେମିତି ଏମିତି ବଢି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ତ ସାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସାର୍ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ତ ସେ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଏଇ ପିଲାଟି ସେ କଣ ଭଗବାନ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇକୁ ଡାକୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ଶୁଣିପାରିବା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ଜାଣିନି ସେ ଗୋପାଳ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତାର ନିଜ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦଲାଲ ଗୋପାଳ।
गोपाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। ତ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଲୁଚିକି ଯେମିତି କହେ, ତ ଶୂନ୍ୟରୁ ସେମିତି କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବିନି। ନା କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ରୂପକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଭାବୁଥିଲେ କି ଭଗବାନ ନିରାକାର ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଚର ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ ତ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ? ତ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେବା ଆମକୁ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ଆମେ ସେବା କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁରାଷ୍ଟକମରେ ଆମର ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଅଧରମ ମଧୁରମ वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। से परम पुरुष भगवान अखिल रस अमृत मूर्ति जे भगवान श्री कृष्ण तांकर सब किछ तांकर अधर मधुर, तांकर बदन सुंदर, श्री विग्रहंकर सुंदर जो मुखमंडल से भी मधुर, नयन भगवान जो कमल नयन थाए से भी मधुर, हसितम भगवान स्मित हास्य थाए से भी मधुर, हृदय भगवान का हृदय से भी मधुर, गमन भगवान चाली सेटा भी मधुर। तो भगवान कृष्णंकर ये मधुर अधिपति पूर्ण रूपे माने भावंतु गोटे रसगोल्ला अच्छी, तो रसगोल्ला को आप कौन करेंगे गोटे जगार उठे आनिबे तार लिक्विड सहित ताको आनिबे गोटे जगह चिपुड़ी देबे, कौन बाहर पूरा जूस बाहर सेटा भी मधुर। से रसगोल्ला कौन करेंगे ताको पाटिरे पकेबे, जो पटु खाइले भी से मधुर अर्थात स्वीट थी। तो भगवान मधुराधिपति अखिलम अखिलम मधुरम, भगवान पूर्ण रूपे मधुर। तेणु आम केमी जाना कृष्ण कहीं परम पुरुष भगवान बोली? बहुत लोग समाज रे अच्छा जो माने कृष्ण को भगवान बोली मानते, तो कहीं आम जाना कृष्ण को प्रभुपाद लिखुं भावार्थ रे कि कृष्ण को एटलिस्ट थियोरेटिकली आमको माने फिलोसफिकली एटलिस्ट आमको कृष्ण परम पुरुष भगवान बोली ग्रहण करा पड़ो। पुरुष माने कौन? पुरुष मध्य अर्थ है जी भोग करे। तो भगवान कौन? भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम सब प्रकार नैवेद्य तार भगवान को प्राप्त, भगवान ही सब प्रकार नैवेद्यर माने कौन प्राप्त हुआ नैवेद्य को। तेणु भोक्तारम भगवान सब किसी प्राप्त हुआ भोग करती। भोक्तारम भोक्तारं यज्ञ तपसा सब प्रकार यज्ञ फलर भगवान भोक्ता। सर्वलोक महेश्वरम सब प्रकार जो प्लानेटरी सिस्टम अच्छी सारा संसार से ईश्वर नियंत्रण करता। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम भगवान आम समस्त हृदय अच्छा। सुहृद अर्थात आमर सब बंधु जे आमर अंतर कथा जानिकी आमर जोटा वास्तव में मंगलमय ताको ही प्रदान करती। सुहृदं सर्वभूता नाम समस्त जीवन हृदय अच्छा। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रुचंती। तो जी ये तत्व को जाने सी शांति रे रही पारे। तो किछिटा शास्त्र रो आमे जानिबा कृष्ण कहीं भगवान बोली। तो ब्रह्म सहित ब्रह्मा वर्णना करछन्ती बाल गोपाल माननकु कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर, ईश्वर माने नियंत्रण करता, किए नियंत्रण करता? परम नियंत्रण करता किए? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, से भगवान किए सच्चिद आनंद वस्त्र तैयारी। तो सच्चिद आनंदमय जी सब सब समय चिरस्थायी, सचित सब सब पर्यंत ज्ञानमय एवं आनंदमय। तो भगवान का शरीर कोथरे तैयारी? हाड़ रक्त मांस रे गढ़ा नुहे। भगवान का शरीर कोथरे तैयारी? सच्चिद आनंद वस्तु रे।
तो सच्चिदानंदमय भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान विग्रह कहीं कहुई बहुत लोग कहते भगवान कौन रूप ना किंतु ये कहुई विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सचिद आनंद विग्रह विग्रह माने सुंदर रूप भगवान अच्छी अनादिर आदिर गोविंद भगवान आदि ना अनादिर आदिर गोविंद किंतु भगवान सब प्रकार तत्वर आरंभ गोविंद किए से भगवान गोविंद जी गाई भूमि एवं आम इंद्रिय मान संतोष प्रदान करती अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण भगवान सब प्रकार कारण 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 तेणु से यदि आम भगवान जन्म माने आविर्भाव लीला को बुझा से भगवान सर्वोत्कृष्टता आम जापर भगवद गीतार वर्णना कराई भगवद गीतार 4 नंबर अध्याय 9 नंबर श्लोक वर्णना कराई कौन वर्णना कराई जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन तो हे अर्जुन जे मोर आविर्भाव जन्म कर्म आ लीला ए दीटा जिन को तत्वतः जापर ठीक ठीक से जापर ताले कौन हम दिव्य केमी जान कौन से कौ सिद्धांत उपनीत हम ना दीटा दिव्य बोली अर्थात भौतिक जगतर त्रिगुणातीत भौतिक जगतर बाहर त्यक्त्वा देहम सी निजर शरीर त्याग कर पुनर्जन्म नहीं तार पुणी आउ जन्म हवनी अर्जुन को भगवान कहते तापर जो आम जानी कृष्ण भगवान 5000 वर्ष तले मथुरा आविर्भाव होते कंसर प्रकोप रु भगवान जो पिता थे वसुदेव सुरक्षा देवाई बाल्य बात्सल्य ममतार सुरक्षा देवाई नंद महाराज कुटियाड़ को पठे से भगवान शुणी आम कौन शुणी कृष्ण भगवान संपूर्ण निजर माँ जशोदा माँ को जो माटी से खाऊले पूरा समग्र विश्व ब्रह्मांड दर्शन कर आम कहीं शुणीचे कृष्ण व्यतिरक अन्य किए पूरा विश्व रूप दर्शन निज मुखमंडल क्या कई शुणी ना कृष्ण भगवान ही सारा संसार समस्त को सॉरी कृष्ण भगवान ही जशोदा मां को विश्वरूप दर्शन कराइले तो भगवान से ही भगवान आज कुरुक्षेत्र युद्ध में पार्थ सारथी रूप में आविर्भाव होती रथर सारथी भाव में अर्जुन रथर सारथी रूप आविर्भाव होती भगवान महानता केमिति गोटे लोक लोक प्रति आम केमती आकर्षित हमें तार महानता सी के महान आम जाना दरकार आम वास्तव में जाने कौन जाने कि गॉड इज ग्रेट भगवान कौन बहुत महान केते महान आम जाने तो भगवान पाखे केतेटा ऐश्वर्य थाए 6 प्रकार ऐश्वर्य थाए तो कौन कौन 6 प्रकार ऐश्वर्य संपत्ति धनवान भगवान पूर्ण रूपे धनवान होती भगवान शक्तिमान समस्त शक्तिर पूर्ण अधिकार भगवान पाखे थाए जशवान भगवान कीर्ति थाए सौंदर्यवान भगवान सर्व सौंदर्य संग्रह ज्ञानवान आम भगवद गीता भगवान कृष्ण भाषा पढ़ुचे वैराग्यवान सब किसी थाई भगवान पूर्ण रूपे निराशक्त तेणु से भगवान निजर संपत्ति जशोदा माँ सरी आमर द्वारिका भगवान तंकर 16,108 जन महिषी माने पाटराणी मानू से कौन करते सुनार समस्त प्रकार ऐश्वर्यर महल बनई भगवान पूर्ण रूपे धनवान कहीं कृष्ण बलवान उदाहरण कौन थिला 7 वर्ष बयस भगवान कौन कर कौन गोवर्धन को धारण करछंती जशवान भगवान माखन चोरी करंतु किंबा युद्ध पलायन भी करंतु तो भगवान जश अनंत समय पर्यंत समस्त ऋषि मुनि माने गुणगान करंती भगवान हेले कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम भगवान कृष्णंकर सौंदर्य एते सुंदर कि भगवान निजे भी तांको द्वारा आकृष्ट हो जाते भगवान सर्व सौंदर्य संग्रह ज्ञानवान भगवान अपरिमित असीम ज्ञानर अधिकारी एवं भगवान वैराग्यवान सब किसी थाई भी आज भगवान रथर सारथी होती तेणु से भगवान शब्द अर्थ कौन भगवान विभूति अर्थात ऐश्वर्य बान माने जे पाखरे अच्छी तो भगवान माने जे समस्त प्रकार ऐश्वर्य को धारण करती सी भगवान से 6 प्रकार मुख्य ऐश्वर्य धारण करते आम समस्त दुनिया किए लक्षपति किए कोटिपति हाँपाई चाहती अरबपति खरबपति हाँपाई चाहती कृष्ण किए कृष्ण हेले लक्ष्मीपति तेणु मुझे भगवान सब भगवान 3-4 विशेष गुण अच्छी समस्त नोट कर कौन कौन विशेष गुण भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम क्रिएटर ये सब किसी को तैयारी करछंती कृष्ण इज द सुप्रीम क्रिएटर सब किसी सृष्टिकर्ता कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर भगवान कृष्ण समस्त नियंत्रण करता
तापर कृष्ण इज द सुप्रीम प्रोपाइटर प्रोपाइटर माने भगवान सब किसी अधिकृत अधिकार करछन्ती कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर भगवान सब किसी भोक्ता से भगवत गीता में कहते प्रथम श्लोक रे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति रक्षति। तो भगवत गीतार 10 नंबर अध्याय रे भगवान कहते अर्जुन को ए अर्जुन तुम्हें देखुच जो सारा संसार अच्छी ना ये सारा संसार केमती संगठित अच्छी एकांशेन स्थित जगत मोर कृष्णकर छोट अंश माने टिके शक्ति माध्यम रे सारा संसार विस्तृत होगी अच्छी। भगवान कृष्ण प्रति अन्य आचार्य माने कौन कहते भागवत वर्णना कराई आम श्लोक पढ़ुले कौन वर्णना कराई भगवान तृतीय अध्याय प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय तो सेठी वर्णना कराई भगवान सब प्रकार अवतार विषय वर्णना कराई तो लास्ट को कौन वर्णना कराई आश्चर्य जिनस लास्ट को वर्णना कराई कहुची एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम क्रोडयन्ति युगे युगे एते चांस ये समस्त अवतार विशेष करी जो प्रमुख अवतार रहा नृसिंह बरा वामन मत्स्य कुर्म इत्यादि बुद्ध समस्त अवतार रहा सब अवतार विषय कहुई कहुची ए समस्त एते च अंश एमाने कृष्णकर अंश कलाहा अंशर अंश पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण किए कृष्ण निजे भगवान कृष्ण कौन से अवतार नुहति भगवान कृष्ण ठारू सब प्रकार अवतार मान आछि तो किए क्या कहते अर्जुन से कहते आहुस्ता ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिमे तो आहुस्ता नारद असित देवल व्यास ये समस्त ऋषि माने ये तथ्य को पुष्टि कर कृष्ण ही सर्वोत्कृष्ट भगवान तापर माधवाचार्य रामाचार्य चैतन्य महाप्रभु समस्त कह जाए कृष्ण ही परम पुरुष भगवान बोली तले विभिन्न अवतार मान विषय वर्णना करा जाए विभिन्न अवतार रे भगवान पाद रे सुंदर सुंदर सब चिन्ह अंकित होता है कौन केतले पद्म केतले छता केतले विभिन्न वज्र केतले मत्स्य केतले धनु शंख ये सब भगवान पाद पद्म अंकित होता है पाद तले भगवान जो सुंदर सुंदर पाद अंकित होता है तो दिने यशोदा माँ देखी कि कृष्ण लहुणी खाई दही हांडी को भांगी देती लहुणी खाई तो भगवान पाद जो पकई पकई जाइछंती तो से पाद रे विभिन्न प्रकार जो चित्र अंकित होगी अच्छी तो जानी से आश्चर्य हेले कि मो घरे बोधे किए जड़े कई जने रोचंती जे दिव्य स्वभाव अधिकारी बोली तेणु भगवान कृष्ण चरण कमल ले सुंदर सुंदर विभिन्न चित्र अंकित होती षोडश तो चिन्हानी मया दृष्टानी तत्पदे तो भगवान को पद्म पुराण वर्णना कराई ब्रह्मा कहते कि मु देखी जिते सब अवतार माने भगवान अच्छा पाद पद्म सब चिन्ह वर्णना कराई चिन्ह अच्छी अल्प अल्प किंतु कृष्ण तांकर पादरे कौन 16 प्रकार चिन्ह अच्छी कृष्णाख्यम तु परम ब्रह्म भुवि जातं न संशय द्वयं वा अथ त्रयं वाथ चत्वारः पञ्च चैव च दृष्टन्ते वैष्णव श्रेष्ठ अवतारे कथंचन सेठी वर्णना कराई विभिन्न अवतार रे केतले दुईटी केतले तीनटी केतले चारिटी कि पांचटी शुभ शुभ चिन्ह वर्णना कराई किंतु कृष्ण कृष्णकर ये सब प्रकार चिन्ह वर्णना कराई संसार थे प्रलय आसी कौन आसी प्रलय आसी से प्रलय रे मार्कंडेय ऋषि से कौन भाषमान अवस्था जाइकी पूरा सारा संसार सबुआले जलमग्न हो जाए 14 ब्रह्मांड पूरा जलमग्न हो तो समस्ते जल रे निमग्न होती किंतु जड़े ऋषि मार्कंडेय ऋषि से कौन करछंती जाइकी पहरी 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 पहुंचती गोटे देखुछंती गोटे बट बरगछर पाखरे पहुंचती तो से बरगछ से देखुछंती एते सारा संसार पूरा जल रे निमग्न होईची ये जो बरगछ केमती स्थित होइक रही तो सी कौन करछंती से बरगछर मूल को जावाई चाहिए तो जो मूल को जावाई चाहिए बहुत दूर पहरी 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 गला बेले मूलर आदि की अंत पाई ना जो ऊपर को आसवाई चाहिए सी देखुं गछ बहुत बड़ अच्छी तो से समय सी किसी भाविया पूर्वर गोटे शिशु कौन करछंती निजर मुख मध्य को माने कौन टाणी नहीं निजर गर्भ को एक निक्षेप करछंती
तो ସେଇଠି ତା ଭିତରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ପ୍ରଳୟର ଜଳ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ସାରା ସଂସାର ଜଳମଗ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ତ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜଳରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁ। ତ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ତ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ସେ କଣ କରିଛି, ନିଜର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି, ତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇକି ନିଜର ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। ବଟପତ୍ର ସାହି ଗୋପାଳ ତ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ହିଁ ସାରା ସଂସାରର ମୁଁ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ରାମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ या पर ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ସିଏ ହେଲେ କଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, କିଏ କହିପାରିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? मर्यादा पुरुषोत्तम। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମର୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯିଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜେଜେବାପା, ତ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି କୃଷ୍ଣ ଆଜି ତୁମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ, ଅର୍ଥାତ ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ, କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। ଆମେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି କଣ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେଠି ସେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି कि एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं मृडश्चरति वृष्णिषु। ସେ କୁହନ୍ତି ବୃଷ୍ଣି ବଂଶରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବତାରର ମୂଳ ଆଧାର, ଇଭେନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରର ବି ମୂଳ ଆଧାର। ଏସବୁ ଏଇ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ, ଏ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ତମ ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ଏଇ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ, ସେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୁମାନ, ଆଦି ନାରାୟଣ, ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉଦ୍ଗମ ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ମୋହୟନ ମାୟା ଲୋକ, ମୋହର ଆବିଷ୍ଟ ହେଇକି ମାୟାରେ ବଦ୍ଧ ହେଇକି ଏ କଣ ସାରା ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭୀଷ୍ମଦେବ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ, ଶିବ ଭଗବାନ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କେତେଟା କଳା ଥାଏ, 64ଟା କଳା ଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ପାଖରେ କେତେଟା କଳା ଥାଏ, 50ଟା କଳା ଥାଏ। ଆମେ ଜୀବ ମାନେ ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ କିଛିଟା କଳା ମାନେ ଗୁଣ, ତ ଗୁଣ ସମାନ ଥାଏ। କେତେଟା ନା ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 45ଟା ଗୁଣ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ 50% ଥାଏ, 50ଟା ଗୁଣ ଥାଏ। ଭାବ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କେତେଟା ଗୁଣ ଥାଏ, 55। ଟିକେ ନୋଟ କରିପାରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ 55ଟି ଗୁଣ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ 60ଟା ଗୁଣ ଥାଏ। ଆଉ ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ, ଆଉ 4ଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥାଏ। କଣ 4ଟା ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଏବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଲା ଲୀଳା ମାଧୁରୀ। ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କେବେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ଏତେ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ନୁହନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବାଲ ଗୋପାଳ ହେଲେ, ଗୋପୀ ମାନେ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଭକ୍ତ ମାଧୁରୀ। ତ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାଧୁରୀ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବେଣୁ ମାଧୁରୀ। ତ ବେଣୁ ମାଧୁରୀ ମାନେ କଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବେଣୁ ବାଦନ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ତିମରେ ରୂପ ମାଧୁରୀ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତ ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଆହୁରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି, କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଭଗବାନ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏକଲୈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ରସାବୃତ୍ୟ ଯାରେ ଛେ ନାଚାଏ ସେ ତେଜ କରେ ନୃତ୍ୟ। ତ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଏକଲା ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆର ସବୁ ଭୃତ୍ୟ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ନୌକର ଚାକର। ଯାର ଛେ ନାଚାଏ ସେ ତେଜ କରେ ନୃତ୍ୟ। ବେଙ୍ଗଲୀରେ ପୋଏମ ଅଛି, ସେଠି କହୁଛି ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ନଚାନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ ନାଚୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ରାମାଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁକଲା ନିୟମେନ ତିଷ୍ଠନ୍ ନାନାବତାରମ୍ ଭୁବନେଷु କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସମଭବତ୍ ପରମାପମାନ୍ୟୋ ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷಂ ତମହଂ ଭଜାମି। ରାମ ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁକଲା ନିୟମେନ ତିଷ୍ଠନ୍। ତ ରାମ ଆଦି ମୂର୍ତ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ, इंटरनेट ମୁଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି।
हरे कृष्ण। आउ थे टेस्ट कर दे। गौरांग प्रभु मोर वॉइस क्लियर अच्छी कहि परिबे? हाँ क्लियर अच्छी वॉइस क्लियर अच्छी। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो कौन कहते राम आदि मूर्ति तो विभिन्न प्रकार जो अवतार माने अछंती तो समस्त प्रकार अवतार कौन भगवान आसी नाना अवतारम अकरोध कृष्ण किंतु कृष्ण स्वयं समभवान भगवान कृष्ण हेले स्वयं भगवान बोली। तो ये कृष्ण शब्दर अर्थ कौन? कृष्ण जो आमे कहूचे तार माने कौन ये वर्णना करायाछि कोटि ना महाभारत रे वर्णना करायाछि उद्योग पर्व चैप्टर 71 वर्स 4 रे वर्णना करायाछि। कृषि भूवाचको शब्द नश्च निवृत्तिवाचको तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। कृष्णि भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इति अविधीयते। तो सिंपल आम यदि बुझीबा तो भगवान महानता विषय वर्णना कराए भगवान कौन माधुर्यता ये दुईटा विषय वर्णना कराए। कृष्ण महानता भगवान कृष्ण कृष्ण माने भगवान महानता तापर भगवान न माने भगवान जी पूर्ण रूपे अन्य को आकर्षित करती भगवान मधुरता विषय वर्णना कराए। तो से समस्त देवता माने भगवान को प्रार्थना करती इंद्र चंद्र वरुण माने प्रार्थना कराती से वर्णना कराए। अवतारा ही असंख्याता कथिता ते तवाग्रत परं सम्यक प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण संहिता रे वर्णना कराए ये अनंत प्रकार अवतार अच्छा किंतु कृष्ण ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ही परम पुरुष भगवान। तो विभिन्न शास्त्र रे अनंत प्रमाण अच्छी कृष्ण भगवान कृष्ण भगवत्ता को नहीं। तो ये सब भगवत्ता को जानिक आमर लाभ कौन कृष्ण भगवान बोली आमर कौन लाभ? तो कृष्ण जो चारिटी प्रमुख गुण मु कहली ये भगवान आम समस्त सृष्टिकर्ता आमर नियंत्रण करता आमर पालन करता एवं समस्त ये भोक्ता। तेणु ये चारिटा जिन आम जो संसार चक्र अच्छी भौतिक जगत भितर विद्यमान अच्छा तो आमको विभिन्न जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक एवं आध्यात्मिक क्लेशर बशवर्ती हवा पड़ुछि किंतु भगवान को निर्भर कले भगवान ऊपर निर्भर कले कौन हम आम भगवान महानता को धीरे बुझी पारिबा आम निज जीवन को भगवान को समर्पित कर पारिबा। तो आम कहीं भगवान आम जीवन में आसवा दरकार भगवान हम आश्रयकर्ता भगवान आमको कौन दिखती आश्रय प्रदान करती खरा है कि वर्षा है आमको गोटे छता दरकार थाए। तो भगवान कृष्ण आम समस्त को आश्रय प्रदान करती से भगवान अच्छा तेणु आम भगवान को आम जीवन में ग्रहण कले सबु प्रकार केवल दुखर मुक्ति दुखर निवृत्ति नुहे सुखर प्राप्ति आनंदर प्राप्ति आमर स्वाभाविक स्थिति आम भगवान पाखे भगवान सेवक रूपे निजक उपस्थापित कर। किंतु ये भगवान को आम जाना केमी क्या माध्यम जाना? तो ये भगवान को जानापी गोटे गोटे तत्व अर्थात गोटे माध्यम अच्छी तो से माध्यम कौन माध्यम को कहुए गुरु तत्व। तो गुरु हेले भगवान तीन शक्ति अच्छी ध्यान दे शुणी पारे भगवान अंतरंगा शक्ति ये भगवान इंटरनल पोटेंशियल अंतरंगा शक्ति तापर किए ना भगवान जो माने बहिरंगा शक्ति भूमिरपवनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति। तो भगवान अंतरंग शक्ति राधाराणी नियंत्रण भितर थाए भगवान जो बहिरंगा शक्ति अच्छी माया देवी नियंत्रण थाए किंतु जीव माने आमे समस्ते जीव माने कौन भगवान तटस्था शक्ति तटस्था शक्ति माने तटरे अच्छे आमे केतेबेले भगवान आड़ केतेबेले देखि आम जीवन में भी आमे केतेबेले भक्ति करने इच्छा हुए आ केतेबेले भक्ति टिके दूरिया इच्छा हुए जेतेबेले आमे भक्ति करने इच्छा हुए सेतेबेले आमे जानिबा कि आमे भगवान अंतरंगा शक्तिर अंतर्भुक्त होगा चाहूचे आउ जो भगवान भक्ति करने इच्छा हुए सेतेबेले आमर कौन हुए भगवान बहिरंगा शक्ति बहिरंगा माने बाहर बाहर शक्ति मध्य अंतर्भुक्त होगा चाहूचे किंतु आम से तटरे अच्छे मझीरे अच्छे तो आम पाखे चॉइस अच्छी आम कृष्ण आड़ को जापर माया आड़ को जापर किंतु आमर स्वाभाविक स्थिति केतबेले आसीबो आमे सबले आनंद केतबेले रहिबा एतबेले आमे कृष्ण को चयन करवा। तो कृष्ण को चयन करिवार जो ज्ञान किए प्रदान करती ये सब भगवान को चयन करिवार माध्यम हमको किए प्रदान करती ना गुरुदेव प्रदान करती। तो गुरु किए जीव आ भगवान भीतर जे मीडिएटर मीडिएटर सी गुरु। तो जीव
को भगवान पाद पद्म रे समर्पण करने ପାଇଁ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହେଲେ गुरु। तो जीव कौन करती ये जो भौतिक जगत में आम पड़ी रही अंधकार मध्य तो अंधकार को आमको निवृत्त कराती तो अंधकार को निवृत्त कर दियंती सेतेबेले आमे भगवान के ऊपर समर्पण हो पारंती। तो ये गुरु शब्द अर्थ आम जाना गुरु क्या कह जाए वास्तव में किए वास्तव में गुरु किए बहुत समय आम देखते गुरु जहाँ आम कि शुणुचे कि पढ़ुचे आम गुरु बोली मानि दे कि गुरु वास्तव में किए सुंदर भाव में आम शास्त्र टिके प्रमाण खोजा विभिन्न प्रकार प्रमाण समस्त भक्ति को परिपुष्ट कर गोटे सेकेंड तो ये शास्त्र रे वर्णना कराई बहुत जन गुरु अच्छा आम बहुत समय ठकामी पड़ जाती तो बहुत वर्णना कौन कराई गुरवो भव शांति शिष्य वित्तापहारका दुर्लभ सद्गुरुदेव शिष्य संतापहारका जो गुरुदेव शिष्यर धन संपत्ति को हरण करने गुरुंकर आसन ग्रहण करछंती तो से भाया गुरु बहुत अच्छा कलिजुग बहुत आसवे किंतु वास्तव गुरु कौन कहते दुर्लभ सद्गुरु बहुत दुर्लभ जे शिष्यर संताप संताप माने दुख को हरण करती से गुरु जो शब्द अच्छी तो गुरु शब्द बहुत तात्पर्यपूर्ण थाए तात्पर्यपूर्ण माने गुरु शब्द को आम एका समय ग्रहण कर माने एसिमुलेट कर पारंती वर्णना कराई कि अद्वैतारक उपनिषद रे वर्णना कराई यजुर्वेद रे गुशब्दस्त्वंधकार स्यात् गुशब्दस्त्वंधकार स्यात् ऋशब्दस्तान्निरोधक अंधकार निरोधित्वा गुरु विधीयते तो गु शब्द माने कौन गु माने कौन जे अंधकार गु शब्द अंधकार गु शब्द अर्थ है अंधकार भौतिक जगत रे अविद्या अविद्या माने भगवान को आम जानती शरीर चेतना रे रुहंती अविद्या कह जाए तो गु शब्द अर्थ है अंधकार रु शब्द अर्थ है कौन जी आमको ये अंधकार मुक्त करती अविद्या मुक्त करती सी हेले गुरु तो से गुरु शब्द अर्थ है जी आमको ये अंधकार भौतिक प्रपंच मुक्त करिकी भगवान पाद पद्म आश्रय प्रदान करती सी हेले गुरुदेव। तो देखा तो गुरुदेव को आम केमी ग्रहण करवा आ 15-20 मिनिट आम यहाँ शुणा तो गुरु क्या जीवन में गुरु आसती तो कई क्या भी गुरु रूपे ग्रहण कर दियंती किंतु वास्तव में जीवन में सौभाग्य केतेबेले उदय हुए ब्रह्मांड भ्रमित कोन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता विजय तो सारा ब्रह्मांड भ्रमण करी अनंत बार अनंत कोटि जन्म 84 लाख जीव जनि भितर अनंत बार भ्रमण करी जीव जो सौभाग्य उदय हुए वास्तव सौभाग्य उदय हुए वैष्णव मान संगे सी कि वैष्णव प्रसाद पाई हो कि अज्ञात भक्ति स्वीकृति पाई से कौन ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमण करी कौन आज तार भाग्य उदय हो कौन भाग्यवान जीव किए सबुठु भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसाद गुरुदेव कृष्ण प्रसाद रे से भक्ति करने आगवर है तो ये गुरु साधारण समस्त को मिले नहीं अर्थात गुरु जे सद्गुरु समस्त को मिलते भागवत वर्णना कराई जे संसार चक्र मुक्त थी जनस्य मोहयम अहम ममेति अहम ममेति मु आ मोर चेतना जे मुक्त थी तो सी भाया गुरु आमको पाइबार खोजार अच्छी कहुई तो यह हम समस्त कर्तव्य जीवन में गुरु ग्रहण करा सर्वदेश काल दशाय जनेर कर्तव्य गुरु पासे से ही भक्ति प्रष्टव्य श्रोतव्य से कहुए आमको कौन करार अच्छी तो समस्त देश काल पात्र को ये करिकी आमको बोनाफाइड जेन्युइन गुरु वास्तव में सतसतिका गुरु रियल गुरु तांको पाखरे शरणागत हबार अछि तांको भक्ति करिवार अछि एवं श्रवण करार अछि भक्तिर प्रोसेस कौन तो मुंडक उपनिषद रे गुरुंकर विषय रे वर्णना कराई तो प्रभुपाद भी सुंदर भाव लेक्चर कहते कौन कहते तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी सूत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम जो भगवान भक्ति जुगर विज्ञान को ज्ञान तो भगवद गीतार अच्छी भागवतम अच्छी किंतु भक्ति जुगर विज्ञान को जानापी तद विज्ञानार्थम से विज्ञान को जानापी से व्यक्ति गुरुमेव अभिगच्छेत गुरु पाखक जाए तो गुरु केमती जाए समित पाणी सूत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी केमती जाए
ନା ଆଗ କାଳରେ ଗୁରୁଦେବ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଡିଆ କରିକି ରହୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରୁଥିଲେ। ତ ଶିଷ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ, ଜାଳେଣୀ କାଠ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସେମିତି ଏଠି ଆମେ ତ ଜାଳେଣୀ କାଠ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯିବାନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ଶୁଣୁଛେ ତ ଖାତା ପେନ୍ ନେଇକି ଯିବା। ତ ସେଠି ସମିତ ପାଣି କ୍ଷତ୍ରିୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ, ତ ଗୁରୁ କଣ ହବା ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ। ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ମାନେ କଣ, ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଯିବା ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଯୋଉ ରିଏଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର, ରିଏଲ ଗୁରୁ କିଏ ହେଇପାରିବ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି କିବା ବିପ୍ର କିବାନ୍ୟାସୀ ଶୂଦ୍ର କେ ନାନାୟ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେଇ ଗୁରୁ হয়। କିବା ବିପ୍ର, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଗୁରୁ ହେଇପାରିବ। କିବାନ୍ୟାସୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ବି ହେଇପାରିବ। ଶୂଦ୍ର ଗୋଟେ ନିଚ କୂଳର ଜୀବ ସିଏ ବି ହେଇପାରିବ। କେନ ନୟ, ଯେଇ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବେ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୃଦବୋଧ ଯାହାଙ୍କର ହେଇଥିବ, ସେଇ ଗୁରୁ হয়। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ଥିବା ଦରକାର। ସେ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। କଣ, ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମମ୍ ଶବ୍ଦେ ପାରେ ଚ ନିଷ୍ଣାତମ୍ ବ୍ରହ୍ମଣି ଉପସମାଶ୍ରୟମ୍। ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯିଏ ଆମର ବାସ୍ତବ ସୁଖକୁ, ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶ୍ରେୟ ଉତ୍ତମମ୍, ଯିଏ ବାସ୍ତବ ଶ୍ରେୟ, ଶ୍ରେୟ ମାନେ ଯୋଉଠି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ତାକୁ ଆମକୁ ଯିଏ ଦେଇପାରିବ, ତସ୍ମାତ୍ ଗୁରୁଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେତ, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଶବ୍ଦେ ପାରେଚ ନିଷ୍ଣାତମ୍, ସେ ଗୁରୁ କଣ, ଶବ୍ଦେ ମନରୁ କିଛି କହୁନଥିବେ, ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଭୌତିକ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ କହୁଥିବେ। ଯୁଆଡୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ କହୁଥିବେ। ଶବ୍ଦେ ପରେ କଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଉନ୍ନତ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ, ପରେ ପରାଶାସ୍ତ୍ର। ସେ ନିଷ୍ଣାତମ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଏ ସ୍ନାନ କରିଦେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଉପାସନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ କନଭିକ୍ସନ ଥିବ, ସେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମର କରାଯାଇଛି ସବ ଭାଗବତମ ରେ, ଆହୁରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କିଏ କହିବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି, ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ ହେଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଶ୍ଲୋକ କହିକି ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ମନକୁ ଲାଗେ ବି। ତ ଆମେ ଟିଭିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଦେଖେ, ନାଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସବୁ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅପ୍ରାମାଣିକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏଠି କହନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣି ନିଷ୍ଣାତୋ ନ ନିଷ୍ଣୟାଦ୍ ପରେ ಯದಿ ଶ୍ରମସ୍ତସ୍ୟ ଶ୍ରମଫଲୋ ହି ଅଧ୍ୟୟନେନ ଏବ ରକ୍ଷ୍ୟତ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ, ଗୁରୁ କେବଳ ତମ ମନରୁ କିଛି କହିବେନି, ନିଜର ଅନୁଭବରୁ କିଛି କହିବେନି, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ କହିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ଯଦି ଅନୁଭବ ଅଛି ତାକୁ କହିବେ, ତେଣୁ ଗୁରୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୁରୁ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରୁନି, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲାଗୁନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ବି ପ୍ରଚାର କରିବି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ଶ୍ରମ ଏବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କଣ କରିବ, କି ଗାଈର ଯତ୍ନ ନବ। ସେଇ ଗୁରୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରେନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରୁନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ନିଜ ମନକୁ ସଂଯତ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରୁନି। ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ହବ, ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଈର ଯତ୍ନ ନବା, ଯୋଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏନି, କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଶ୍ରମ ହେବ ହିଁ କେବଳ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, କଣ କଣ ଗୁଣ ଥିବ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଉପଦେଶାମୃତରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି 6 ପ୍ରକାର ବେଗ, 6 ପ୍ରକାରର ବେଗ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିବେ। କଣ, ବାଚो ବେଗಂ ମନସଃ କ୍ରୋଧ ବେଗಂ ଜିହ୍ବା ବେଗಂ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗಂ ଏତାନ୍ ବେଗାନ୍ ୟୋ ବିଷୟେତ ଧୀର ସର୍ବାନପି ମାಂ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଶିଷ୍ୟାତ୍। ତ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବାଚୋ ବେଗମ ଜିହ୍ବା, ବାଚୋ ବେଗମ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୋଧ ବେଗମ ଜିହ୍ବା ବେଗମ ଉଦର ଉପସ୍ଥ। ବାଚ ମାନେ କହିବା, ଗୁରୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ କହୁଥିବେ। ବାଚ ମାନେ କହିବା, ତ ତାଙ୍କର ଟଙ୍ଗ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ପଚରା ହବ, ନ ପଚାରିଲେ ବି ଆମେ ଗୁଡାଏ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯିଏ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବେଗ ଅଛି, ଜିହ୍ବା ମାନେ ବାଚ କହିବାର ବେଗଟା, ତାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ। ବେଗ ମାନେ ସ୍ପିଡ ନୁହଁ, ବେଗ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ
सब आम किसी बसवा आमको भल आम किसी कहवाक चाहिए माने मुझे तो आम ये जो थाए कहबार बेग बाचो बेग मनस मनर बेग तापर कौन एक्शन माने हमर क्रोध गुरु रागी रागी जाऊ नथिबे गोटे छोट छोट कथा छोट छोट बोलले गुरु रागी जी जानिबो क्रोध बेगर बस करते तो बाचो बेग माने माने कहबार बेग मनर बेग क्रोधर बेग तीनटा कहली जिह्वा बेग जिह्वार बेग जिह्वा कौन करे एठी सेठी खाइदेवा हैला तो ये सब जिन जिह्वा बेगम उदर बेगम उदर माने हमर बेली पेट तापरे जेनिटल उपस्थ बेगम जेनिटल माने से अशास्त्री संग पुरुष करूनथिबो तो एतान बेगान जो विषय है धीर तो ये छटी बेग को जे नियंत्रण करथिबो सर्वाम अपिवाम पृथिव्याम शिष्यात से व्यक्ति जे कृष्ण को तत्व जानिथिबो छटा बेग को नियंत्रण करथिबो कृष्ण तत्व जानिथिबो सी ही सारा संसार रे शिष्य बनै परिबो अर्थात सी ही गुरु हे परिबो तो हमर चारिटी संप्रदाय अछि तो कली जुग रे आमे तले भगवान भक्ति जोग को अवलंबन करूचे चारिटी संप्रदाय माध्यम रे करूचे कौन संप्रदाय समस्त मन रख आमे तले गुरु चयन करिवा गुरु को निज जीवन रे ग्रहण करिवा आमे ठकी न जीवा दरकार तो गुरु निश्चय भाव में प्रामाणिक हेतिबा दरकार परंपरा रे आसुतिबा दरकार कृष्ण को जानिथिबा दरकार आगु आमे सुनिले सब किंतु एबे परंपरा रे आस्थिबा दरकार कि ग मीरा भाई तो बहुत सुंदर गीत गाउछन गुरु करबी हबनी प्रथमे परंपरा देखिबो तापर जानिबो कि तांकर जो बेग सब नियंत्रण देकी अछि कि नाही तापर जानिबो से कृष्ण तत्व को जानिछंती कि नाही ए सब जिनिस देखा जाए तो प्रामाणिकता केमती चारिटी संप्रदाय अछि श्री संप्रदाय को किए लीड करछंती श्री रामानुजाचार्य तापर रुद्र संप्रदाय रुद्र माने शिवजी भगवान जो ज्ञान भगवत विज्ञान कहा को देले चारि जन को देले प्रथमे लक्ष्मी देवी को देले ब्रह्मा को देले शिव को देले सनक सनातन सनत कुमार एवं सनंदन चतुष कुमार हेले तांको देले तो ये कली जुग पई सी कौन करे तांका आचार्य मान को ग्रहण कले तो श्री संप्रदाय आचार्य के रहिले रामानुज आचार्य तो क्वेश्चन आसीबो रे तो रामानुज आचार्य तापरे रुद्र संप्रदाय शिवजी को जो ज्ञान प्रदान कले से कहा को प्रदान कले ना विष्णु स्वामी शंकराचार्य नुहे विष्णु स्वामी को से प्रदान कले तापर ब्रह्म संप्रदाय माने ब्रह्मा जो कृष्ण जो ज्ञान ब्रह्मा को देले ब्रह्मा कौन कले से ज्ञान कहा को देले श्री माधवाचार्य माधवाचार्य को प्रदान चतुष कुमार को जो ज्ञान प्रदान कले से कहा प्रदान कले श्री निम्बर्क आचार्य तो चारि जन को ये ज्ञान प्रदान करछंती तो आमे जो आज भगवत गीता श्रवण करूचे किबा गीता पढुचे प्रभुपादकर इस्कन भगवत गीता पढुचे ओ संप्रदाय रे आसुची ना ब्रह्मांक संप्रदाय रे आसुची ब्रह्मा शिव नारद व्यास माधव एमती गड़ी 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 चैतन्य महाप्रभु देकी प्रभुपाद तापरे आपण समस्त मानव मान भितर पहुंचे तेणु गुरु कौन हेतिबा दरकार प्रामाणिक हेतिबा दरकार वृंदावन के सुंदर भाव भजन करछंती सुंदर कथा कहउछंती किंतु प्रामाणिक अछंती कि नांदी आमे जानि नै आमे सड़क जीवार नै तो गुरु निश्चय प्रामाणिक हेतिबा दरकार वायु प्रमाण वर्णना कराई यदि गुरु गुरु निश्चय भाव में सब प्रकार नीति नियम पालन करते दरकार वायु पुराण कौन वर्णना कराई कि अचीनोतीय शास्त्रार्थम आचरे स्थापयत्यपि स्वयं स्वयं आचरते अस्मान आचार्य तेन कृत्य तो जो हमें आचार्य मान ना शुणिले माधवाचार्य हेले रामानुजाचार्य हेले जो आचार्य मान ना शुणिले तो आचार्य शब्द अर्थ कौन ये निज आचरण द्वारा शिखाए प्रभुपाद विदेश जाइए प्रभुपाद शिष्य मैंने केमी शिक्षा कले सब जिन प्रभुपाद केमती खाऊले केमती गायत्री करते केमती भगवान आरती करते केमी भागवतम क्लास दौले केमी प्रभुपाद आचरण चालीचरण थिला तो सब जिन को प्रभुपाद निज आचरण में शिखौले से प्रभुपाद हेले जुगर आचार्य जुगाचार्य हेले प्रभुपाद तेणु जी आचार्य हमें से निज आचरण में अन्य को शिखा दरकार सी ही वास्तव में गुरु तो ये सुंदर भाव में वर्णना कराई सत्कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सैद वैष्णव स्वपाच गुरु वैष्णव स्वपाच गुरु तो ये कह ठीक अच्छे आम तो जानिले प्रभुपाद आम मानले कि बहुत समय यूट्यूब फेसबुक ये सब शुणी दिखती कि गोटे कथा कहले शुणी वैष्णव मैंने भगवान विष्णु भक्त नुहति अवैष्णव से तो केमती तुलना कराई गोटे साप अच्छी से साप कौन गोटे क्षीर हांडी अच्छी से हांडी से विष दे अर्थात से मुह मारी तो ये से क्षीर को क्षीर एक पुष्टिकर खाद्य ताकू जी ए ग्रहण कर सी कौन हम मृत्यु हम कहीं ना क्षीर भितर विष मिशी सेमती अवैष्णव
अवैष्णव जदि जीवन में किए पारमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति करने चाहिए निश्चय भाव में जीवन में वैष्णव गुरु को चयन करा पड़ो प्रामाणिक वैष्णव गुरु को चयन करा पड़ो कि जो अवैष्णव थी नुहे सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद से बहुत मंत्र जानती तंत्र जानती विशारद अच्छी अवैष्णव गुरु न सैत् वैष्णव नुहे भगवान विष्णु से भक्त नुहे ताले वैष्णव सबच गुरु अर्थात से आम ग्रहण करें अपर पक्ष जी आमर स्वपच जी डग इटर जी कुकुर को भोजन भी करुव जो परिवार थी माने चांडाल परिवार भी जन्म हो भगवान विष्णु भक्ति करुव चांडाल परिवार जन्म होती किंतु भगवान विष्णुकर भक्ति करिछि आम गुरु रूपे ग्रहण कर तो गुरुंकर योग्यता भौतिक योग्यता उपर निर्भर करे नहीं बहुत सुंदर भाव गुरु निश्चय भाव उत्तम अधिकारी गुरु आम जो भक्त होचे भक्तर तीन प्रकार अधिकार थाए गोटे कनिष्ठ अधिकारी गोटे मध्यम अधिकारी उत्तम माने टॉप लेवल शुद्ध भक्त भगवान ये शास्त्र जानी हृदगम कर शास्त्र उपर दृढ़ श्रद्धा थी सी उत्तम अधिकारी गुरु कौन गुरु क्या भितर भेद देखी पारे जो उत्तम अधिकारी थी सी भेद देखी पार न स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र हय निज इष्ट देवर श्रुति तदी हमर महादेवेंद्र पुरीपाद आमर क्षीरचोर गोपीनाथ से प्रसंग रे आम शुणुचे सर्वत्र स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति से सब संसार को सब जिन देखुव किंतु जो सब जिन देखुव तार कौन स्मरण हो सर्वत्र हय निज इष्ट देवर स्मृति इष्ट देव माने भगवान कृष्ण स्मृति हो बहुत सुंदर भाव वर्णना कराई समस्त को यही भौतिक जीवन को हम जो मनुष्य जन्म पाइचे तो मनुष्य जन्म को सफल बनाया आम वैष्णव गुरु ग्रहण करा पड़ो तो प्रामाणिक रूप से यदि आम देखा गुरु निश्चय भाव में प्रामाणिक होता दरकार गुरुंकर भौतिक योग्यता अपेक्षा सी सब प्रकार नीति नियम पालन करते 6 प्रकार वेग को नियंत्रण करते दरकार उत्तम अधिकारी होता दरकार गुरु ब्रह्मनिष्ठ माने पूर्ण रूपे भगवान कृष्ण को जानी दरकार किंतु जे भौतिक विषय प्रति आसक्त थी से गुरु हो पारे उद्योग पर्व महाभारत कौन कहुई गुरुरपि अवलिप्त कार्य कारम जानतम गुरु यदि जानते कौ कामटा कर कामटा करार ना उपस्थ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते तो सी कौन करते वास्तव कर्तव्य जानी नथिबे कौन शुद्धता ही नथिबो तो भक्ति व्यतीत अन्य सब लोअर पाथ भक्ति सर्वोत्कृष्ट रास्ता भगवान को प्राप्त करने व्यतीत अन्य किसी जिन कहते कर्म कर कर्म ही भगवान ये सब जिन कहते जान से आमको रिजेक्ट करा गुरु कौन करते सब पारमार्थिक अर्थात भगवान सहित कनेक्ट करुवे आ गोटे सुंदर श्लोक आम उच्चारण करवा वर्णना कराई ऋषि कृष्ण भजनामृत वर्णना कर तस्य कृष्ण बलान् सारस्य गुरोर्बलं वर्धनीयमिति श्री श्री वैष्णवानां भजना विचारया एव तु दृष्टवन्तः बहवः श्रीकृष्ण चैतन्यावतरे गुरु निरूपणो सिद्धांत वर्णना कराई माने शुद्ध भक्त थिवे वैष्णव थिवे शुद्ध भक्त थिवे तांको आमे गुरु रूपे ग्रहण करवा तो भौतिक जीवन जो खराब प्रभाव अच्छी जो भौतिक जीवन क्लेश अच्छी तुरंत दूरीभूत हो तेणु ये गुरु आमको मिले केमती गुरु केमती मिले कि कहि परिबो गुरु आमको केमती मिले भगवान को प्रार्थना करार अछि तो गुरु तो लिखा है गोटे श्लोक दुईटा श्लोक पढ़ा केवल वैष्णव ही वर्णाश्रम समस्त गुरु हो पारे किए गुरु हो पार कौन शिवर भक्त कि कौन देवी भक्त हनुमान भक्त एम गुरु हो पारे केवल वैष्णव ही गुरु हो पारे वर्णना कराई पद्म पुराण रे विप्र क्षत्रिय वैश्यश्च गुरवः शूद्र जन्मनां शूद्राश्च गुरवस्तेषां त्रयाणां भगवत प्रिय जे भगवत प्रिय थी भगवान कृष्ण के प्रति जे प्रिय हो सी ही वास्तव में गुरु हो पार किंतु जे वैष्णव नथिबो से गुरु हो पारिबनी तेणु से
चैतन्य महाप्रभु सुंदर भाବରେ କହିଛନ୍ତି कि कौन कहते कि गुरु किए हे परिबा जार देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञान गुरु होया तार एई देश समस्ते गुरु हे परिबे जेतेबेले भगवान कृष्ण जोटा को कहउछन्ति चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର रूपरे सेटा को आज इट इज वास्तव रे ठीक ठीक नै कि अन्य पाखरे हमें यदि प्रेजेंट करछे सरस्वती गोटे छोट पिला थिला सरस्वती प्रभुपाद कर अति प्रिय थिले से तो सरस्वती कौन कला ए जन को कहले कि डू यू नो हु इज कृष्णा सरस्वती कहले सरी सरस्वती जन को पचारले डू यू नो हु इज कृष्णा तो सरस्वती तापर तांको उत्तर देउछन्ति सामना वाला लोक जे मना कला छोट पिलाटे से मना कला सच कहले कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण हले परम पुरुष भगवान तेणु प्रभुपाद तुरंत देखि कहले तांको शिष्य मानू देखो देखो छोट पिला किंतु से आज प्रभुपादଙ୍କର सॉरी भगवान कृष्णଙ୍କର विषय प्रचार करूची से भी गुरु हे परिबो अर्थात जी कृष्ण तत्व बेला जी कृष्ण को जानी कृष्ण किए भगवान बोली सी मतलब से ज्ञानटा समस्त वितरण करिवो से भी गुरु हे परिबो जार देखे तारे कह कृष्ण उपदेश कृष्ण विषय कहि परथिबो हमारा आज्ञा गुरु है तार देश रत्न महाप्रभु तुम्हें भी गुरु हुआ किंतु कृष्ण विषय कहथिबो ता सहित हम जो पूरा पूरा जो लिस्ट पढ़िले से निज इंद्रिय मान को संयत करथिबो मन को भगवान कृष्ण के निविष्ट करथिबो प्रामाणिक हेतिबो ताहाले गुरु हे परिबो तो गुरु को आमे केमती प्राप्त हवा लास्ट जिनस चैतन्य महाप्रभु समस्त कहते आमको गुरु केमती मिले कृष्ण प्राप्ति गुरु मिले गुरु कृष्ण कृपाते गुरु मिले गुरु कृपाते कृष्ण मिले जदि आम उपरे मंगल आरती आम सुंदर गोटे पद्य अच्छी संसार दावानल निदलोक प्राणाय कारुण्य घनाघनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम तो भगवान जिते कौन बद्ध जीवर जीवन रे सौभाग्य आनती सेते बेले से कौन करती गुरु को प्रेरण करती कृष्ण कृपा रे हमको गुरु मिले प्रामाणिक रूप से हमको गुरु मिलगले से कौन गुरु कृपा हमको कृष्ण मिल लास्ट जिनस गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव जिसको भुवनेश्वर प्रतिष्ठा करते से कहते आम साधु व्यक्ति गुरु को चिन्हवा केमती इंग्लिश रे लिखा है केवल रिसाइट कर पड़ो तो डिवोटी पचार हाउ डज वन रिकॉग्नाइज ए साधु और गुरु तो श्रील गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव कहते क्राई बिफोर कृष्ण आमको भगवान कृष्ण पाखे क्रंदन करा पड़ो ओनली ही कैन हेल्प अस टू फाइंड ए साधु और गुरु से आमको जने गुरु पाखे पहुंचापी साहाय्य करेंगे वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज ए गुरु आम निजर भौतिक चक्षु माध्यम गुरु को चिन्ह पारिबा नहीं यू हैव नो विजन आमर कौन दर्शन ही नहीं टू सी द साधु साधु को दर्शन करिवार कौन दृष्टिकोण नहीं इफ यू ट्राइड बाय योरसेल्फ टू रिकॉग्नाइज साधु यू विल बी चीटेड यदि आमे चेष्टा करिबा निज इंद्रिय माध्यम रे गुरु को जानिया पई आमे ठकी जिबा इफ यू आर सीरियस यदि आमे वास्तव रे सीरियस अछे तेणु देन वी हैव टू क्राई फॉर कृष्ण भगवान के पाखरे हमको क्रंदन करिया पड़िबो हे कृष्ण मु आपनकर सेवक आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय तो महाप्रभु हमको कहते कि ऐ नंद तनुज किंकर नंद तनुज माने कृष्ण है कृष्ण मु आपनकर चाकर ऐ नंद तनुज किंकर पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ संसार विष जलारे मु अधपतित होइकी अछि कृपया आपण कृपा करिके कौन करंतु तव पाद पंकज आपन पाद पद्म द्वारा मते उद्धार करंतु स्थित धूली केमिति से पाद पद्म रे गोटे छोट धूली कणा रूपे मते ग्रहण करंतु तो एटा हम प्रभुपाद गुरुदेव भगवान चरण कमल रे प्रार्थना करि परिबा ए मनुष्य मन को हमें आउरी गुरुतर भाव रे निष्ठापर भाव रे ग्रहण करिया पई हमर आध्यात्मिक उन्नति अतर कृष्ण भक्ति को प्राप्त करिया पई हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल हरे कृष्णा कार किसी प्रश्न समय ही गलानी 2 मिनिट हम क्लास करले तो कार किसी प्रश्न किबा कमेंट्स अच्छी शेयर कर परिबे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी विष्णु और कृष्ण भितर फरक कौन आमे आज शुणुतिले विष्णु भगवान विष्णु को पाखरे 60 कला अछि कृष्ण को पाखरे 4 एक्स्ट्रा कला अछि
रूप माधुरी वेणु माधुरी इत्यादि जो कला शुणिले चारिटी कला तो कृष्ण ही समस्त अवतार उद्गम उद्गम माने आविर्भाव तेणु कृष्ण ही मूल अवतारी एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान से कृष्ण ही स्वयं भगवान कृष्ण ठारू विष्णु अच्छे ओडिया रे सब गीत भाग देछंदी 16 कलारू एक कला नंदबोला सब गीत भाग देछंदी तो सेटा नुह सेटा प्रामाणिक नुहे हरे कृष्ण आउ किछि प्रश्न अछि ठीक अछि यदि कार किछि प्रश्न नाही हमें एटी रहइबा पुणी गीता मन यार निश्चय पक्का क्वेश्चन आंसर हमको प्राप्त हबो काली की परदिन तो समस्त क्वेश्चन आंसर चेष्टा करिया दरकार ए तत्व को धीरे धीरे बुझिया पाई पुणी हमें नेक्स्ट रविवार रे जोटो हम श्लोक कंप्लीट करते लास्ट टाइम ताटू पढ़िबा ठीक अछि हरे कृष्ण वंशाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण